Okay, now our next topic in electrodynamics course is polarization. By the process polarization, I expect that you people should be well aware of this concept, as we have studied this concept in the course of optics and waves and oscillations. But for the for revision, I should remind you that polarization is a process in which you confine a single vector of wave to certain direction. By confining, I mean that you let that vector to vibrate in that specific direction. Suppose if we confine the electric field vector just to oscillate along single axis, and by doing so, what happens to magnetic field vector, that it also aligns itself into the other direction, it is perpendicular to the direction in which electric field start oscillating. Then this process is known as polarization of electromagnetic wave. Now, as we also know that the process of polarization occurs in transverse waves only, and here the wave we are considering is transverse wave. Usually we consider light wave in this course. What we assume the wave is moving along z direction, and we confine our wave either along x direction or along z direction or along any direction in xy plane. Why I am taking these three choices? Like, I can confine my wave along x-axis or along y-axis or along any direction in xy plane, because these three cases are the direction that are perpendicular to z-axis. I have kept it in mind that my wave is propagating along z direction, and then I can choose any three of these directions in which I can polarize my wave. Now consider that my wave is moving along z direction, the electromagnetic wave or whatever it is, the transverse wave, let be simple. Transverse wave is moving along z direction, and you start oscillating it along a direction which is perpendicular to z axis. So if this is my z axis, and here if it is my x axis, and the axis which is into my page, which is going into and out of this page, will be y direction. Like, this was my x direction, here it is y direction, then an axis which is going out and in and out of this page will be z direction. Consider that if I confine my wave, or if I allow my wave just to oscillate along x direction, then the shape of my wave will be this way. ठीक है, up and down जाएगी, but just along x means पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस से अलॉन्ग कर रही है, और प्रोपिगेट किस डायरेक्शन में कर रही है, जी एक्सिस. मेरी वेव जी एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपिगेट कर रही है, लेकिन ऑसिलेट अलॉन्ग एक्स एक्सिस कर रही है. तो मैथमेटिकली मैं इस वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी, एफ ऑफ वी. आई हैव रिटन वी ओवर हेयर जस्ट बिकॉज टू डिफ्रेंशिएट दैट माई वेव इज़ ऑसिलेटिंग अलॉन्ग a direction which is vertical to z axis. If this is z axis, then x axis is vertical to z axis. So f of v zt will be equal to a e raised to power iota k z minus omega t into x unit vector. इधर जो मैंने वेव ली हुई है, ये मैंने कॉम्प्लेक्स वेव ली है, दैट्स वाई आई हैव पुट कॉम्प्लेक्स एंड a bar over f and a bar over a. ए आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है, जी आपके पास वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग आपकी वेव ट्रैवल कर रही है, प्रोपगेट कर रही है. एक्स आपके पास प्लेन ऑफ प्रोपगेशन है या फिर एक्सिस ऑफ प्रोपगेशन है, ठीक है, विच इज़ एक्स एक्सिस. इधर आप देखिए गर्ल्स, यहाँ पे मैं वो वाले एक्सिस लेती हूँ या वो वाली डायरेक्शन लेती हूँ जहाँ पे जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रैवल कर रही हो, ठीक है. अब अगर मैं इसी वेव को
हॉरिजॉन्टली पोलराइज कर दूँ और मैं इस वेव को जस्ट ऐसे ऑसिलेट करना अलाउ करूँ कि ये जस्ट सपोज इफ़ दिस इज़ जी डायरेक्शन, तो इस जी डायरेक्शन के जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी वाई एक्सिस, ठीक है। तो आप एफ ऑफ वी मेरे पास जी टी होगा ए ई रेस्ट पर आयोटा टी माइनस ई रेस्ट पर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी इंटू वाई। डिफरेंस क्या है दोनों में? यहाँ पे मैंने अगर एफ वर्टिकल लिया हुआ है तो यहाँ पे मैंने एफ वर्टिकल लिया हुआ है तो यहाँ एफ हॉरिजॉन्टल हो गया है, ठीक है। और अब हॉरिजॉन्टल मेरे पास कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। वो वर्टिकल मेरे पास कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। सॉरी, इट जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। हॉरिजॉन्टल मेरे पास कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। इसको मैं डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? देखिए, प्रोपिगेट अगेन मेरी वेव जो है वो अलॉन्ग जी एक्सिस कर रही है, ठीक है। वी जो है वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़ अगेन अलॉन्ग जी एक्सिस, बट आपकी ऑसिलेशन जो हो रही है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस हो रही है। वेव पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही ऑसिलेट कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है। अब नेक्स्ट, ये आपके पास दो ऑप्शन दे रहे हैं ना, मैं आपको कल से 3 जो केसेस हैं दैट कैन बी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप ऑसिलेशन को कॉज कर सकते हो, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर सकते हो, थर्ड आप वाई जी प्लेन के अलॉन्ग अपनी वेव को ऑसिलेट करवा सकते हो। तो अगर मैं वो करवाऊँगी तो देखें अगेन एफ जी ऑफ टी, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ना वी लिखा है ना एच लिखा, बिकॉज दिस टाइम द वेव इज़ नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन नथिंग ओवर हियर। बाकी चीज़ें वही हैं, ए ई रेस्ट पर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, बट इधर मैंने एन लिख दिया, आर्बिट्ररी यूनिट वेक्टर, ठीक है। और ये जो एन है ये मुझे पोलराइजेशन वेक्टर, लाइक इट्स शोइंग द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन या डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। एन इज़ पोलराइजेशन और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोलराइजेशन वेक्टर एंड इट शोज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, किस प्लेन में आपकी वाइब्रेशन हो रही। तो फर्स्ट 2 केसेस में मेरा जो पोलराइजेशन वेक्टर था वो एक्स एंड वाई जी एक्सिस था रिस्पेक्टिवली। अब मेरे पास आई एम नॉट नोइंग एनी एक्सिस along which the wave has been polarized, that's why I am writing an arbitrary and polarization vector। अच्छा, ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है ना, जो भी हो, वट एवर इट इज़, आइदर एक्स वाई और जी, वट एवर it will be always perpendicular to z। and what is z? z is the direction in which the wave is moving। it means कि जिस डायरेक्शन में आप की वेव ऑसिलेट कर रही है दैट शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज़ मूविंग, ठीक है। मैथमेटिकली इस चीज़ को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? आप डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो दोनों जो डायरेक्शंस हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास n डायरेक्शन है, n यूनिट वेक्टर में आपकी वेव जो है वो ऑसिलेट कर रही है और c डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपिगेट कर रही है। देखिए, दिस इज़ ऑसिलेटिंग वेक्टर एंड दिस इज़ प्रोपिगेशन वेक्टर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट किन वेक्टर्स के बीच में 0 होता है? जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अच्छा, अगर आपने इसी चीज़ को ये तो मैंने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में शो किया है ना, अगर मैं एंगल की फॉर्म में शो करूँ तो यूनिट वेक्टर इज़ एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन, बट आई एम नोइंग इट दैट इट इज़ इन एक्स वाई डायरेक्शन। एक्स वाई डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन आप ले लो, एक्स वाई प्लेन में कोई भी डायरेक्शन ले लो, तो वो जो एक्स वाई प्लेन है उसका सर्टन एक्स पार्ट होगा, सर्टन वाई पार्ट होगा। जो एक्स पार्ट है वो ऑब्वियसली दैट विल हैव कॉस एंगल एंड द वाई पार्ट विल हैव साइन एंगल। तो आप उस वेव को फिर कैसे लिख सकोगे? एफ ऑफ जी टी ई रेस्ट पर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी कॉस एन यूनिट वेक्टर की जगह मैंने ये लिख लिया, कॉस थीटा एक्स यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा वाई यूनिट वेक्टर। और आप इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हो तो आप क्या करते हो कि कॉस पहले इसके साथ लिख लो और फिर साइन इसके साथ लिखो। देखिए ये जो है ना ए कॉस ऑफ आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी, ये यही चीज़ है, कॉस मैंने लिख लिया है, ठीक है। एंड देन एक्स और फिर ए ई रेस्ट पर आयोटा ओमेगा टी, ई रेस्ट पर आयोटा के जी माइनस ओमेगा टी और फिर साइन थीटा एंड वाई, ठीक है। अब आर्बिट्ररी कोई एंगल है, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, इसमें कोई आर्बिट्ररी एंगल ले लो, कोई एनी थीटा, ठीक है। दिस एंगल शुड नेवर बी 0 और नॉट 90। 0 हुआ तो वो एक्स एक्सिस को शो करेगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, 90 हुआ तो वाई एक्सिस को शो करेगा, दैट इज़ वाई आप कोई बिटवीन 0 एंड 90 कोई एंगल ले। तो अब आपकी वेव देखिए इस एक्सिस के अलॉन्ग, ये जो कोई एंगल है ना, इस एक्सिस के अलॉन्ग अप एंड डाउन मूव करेगी।
Actually, this is polarization along any arbitrary angle. That was it for this topic.